एक सीधा सवाल, क्या आप सच में वेट कम करना चाहते हैं? सिर्फ हाँ या ना? मैं आपसे 1 महीने में 10 किलो वेट कम करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि कैसे सेफ और सस्टेनेबल तरीके से हम अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। हो सकता है इससे पहले भी आपने कई बार ट्राई किया होगा, आपका वेट कम भी हुआ होगा और शायद वापस बढ़ भी गया होगा। आप कंसिस्टेंटली किसी प्रोग्राम को फॉलो भी नहीं कर पाए होंगे और आपको लगने लगा होगा कि शायद आप वेट कम कर ही नहीं सकते। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हम किसी नई डाइट या किसी नए वर्कआउट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो सच में हमारी बॉडी में चेंजेस लाती हैं। इस जर्नी में आपको सिर्फ 15 दिन तक अपना 100% देना है और बीच में आप कोशिश करके भी इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहिए। बस यदि आपकी ये इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए हाँ है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के डे 1 को। चलिए, सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। इसके लिए सिट क्रॉस लेग ऑन योर मैट। नाउ टेक योर हैंड्स बाय योर साइड्स। While inhaling, raise your arms up, touch the outer side, and take your hands down while exhaling with open mouth. Inhale. Again, inhale. Exhale with open mouth. Inhale. Last round. Inhale. And relax. Now, hands on your knees. Now, gently move your neck towards the right side. Just hold for a few seconds. Change. Now, slowly take your neck in the center and turn it towards the left side. Center. Now, drop your chin down towards your chest. Relax. Now, slowly lift your head up and turn it. Look towards the ceiling. Change. Slowly come back in the center. Now drop your right ear towards the right shoulder. Feel this stretch. Center. Now drop towards the left side. Center. Now next one is shoulder rotation. For this, lift your shoulders up and take them back and make a circle from your shoulders. 5 times we have to do. 2, 3, 4, 5. Now change the direction. Now take the shoulders back first, lift them and bring them forward. Second round, third round, fourth round, 5, and relax. Now come in tabletop position. For this, your hands are just below your shoulders and your knees are just below your hips. Now inhale and give a arch in your lower back. Exhale. Now hunch your upper back, lift your shoulders up slightly, make a cavity in your abdomen, look down in between your knees. Again, inhale and make an arch. Feel this. Change. Start hunching your back while exhaling. हम अपने हर पोज को फील करते हुए करेंगे. फील करिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. Again, inhale and look up. Change. Exhale. Look down. Push your upper back muscles up. Change. Come in tabletop position. Now take your left hand behind your right hand and lift your right hand up. आपके hips आपके knees के ऊपर ही रहेंगे. Feel this twisting action. जो भी पोज आप कर रहे हैं, आज हमारा डे 1 है,
आप जितना भी कर सकते हैं आप उतना ट्राई करिए. After holding it for 10 counts, come back. Now same way we will do with the opposite side. Take the right hand behind your left hand and lift your left hand up. We are holding it for 10 counts. अपने लेफ्ट शोल्डर को हम पीछे की साइड पुश करते रहेंगे और इस ट्विस्ट को हमें फील करना है. एंड स्लोली कम बैक. One more time, coming in tabletop position. Now fixing our hips above our knees. Now walk with your hands forward. Now we have to touch our chest and chin to the floor. आपको ये जो आर्च फील हो रहा है अपनी लोअर बैक में, सॉरी अपनी अपर बैक में, हमें इसे ही फील करना है. फील दिस. अगेन वी आर होल्डिंग इट फॉर 10 काउंट्स. हो सकता है आज आपकी चेस्ट नीचे नहीं टच हो रही है, पर डोंट वरी. जहां तक भी आप इजीली पहुंच पा रहे हैं आप वहीं तक करिए. एंड स्लोली कम बैक. वॉक बैक with your hands and sit in Vajrasana. Now open your knees wide and bring them at the edges of your mat. Now place your hands in the center of your knees and slide them forward. Make sure your hips are not coming up. Now place your forehead on your mat and relax here in child pose. Feel the stretch in your lower back. धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स को आगे की तरफ क्रॉल करते रहिए और जो लोअर बैक में स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए. 10 काउंट्स के लिए यहां पर भी हम होल्ड कर रहे हैं. एंड चेंज. नाउ लिफ्ट योर हेड अप, लिफ्ट योर बटक्स अप, टच योर टोज, लिफ्ट योर नीज. Now just bring your feet slightly forward. थोड़ा सा अपने पैरों को आगे लाते हैं. Now first we will do the cycling of our legs. हर बार अपनी हील को अपने मैट से टच करने की कोशिश करिए और आपकी काफ मसल्स में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए. Push your heel in your mat. Feel this stretch. 2-3 more times. And now just keep pushing your heels and now start pushing from your shoulders. Just push back from the shoulders. 2 more times. One last time. And now just hold this position. Wherever your shoulders are going, your heels are touching or not, it doesn't matter. बस आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है. एंड चेंज. नाउ स्लोली वॉक फॉरवर्ड विद योर लेग्स एंड जस्ट हैंग योरसेल्फ. अपने पैरों के बीच में देखिए और जस्ट मूव योर हैंड्स साइड टू साइड. आपके हाथ जहां तक भी आराम से पहुंच रहे हैं बस हमें वहीं तक पहुंचाना. कोई प्रेशर अप्लाई मत करिए. एंड चेंज. Now bring your hands on your knees और अब अपनी बैक को जितना आप फ्लैट कर सकते हैं फ्लैट करिए और थोड़ा सामने की तरफ देखिए. आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, आपकी बैक भी स्ट्रेट है. यू आर नाउ इन अ 90 डिग्री एंगल. एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए. और अब धीरे धीरे ऊपर आ जाइए. नाउ place your hands on your waist. There is some gap between your legs. Now just rotate your hips. जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं अपने हिप से उतना बड़ा बनाइए. 5 times we have to do in one direction. 5. And now change the direction. Same way. Make a big circle. 2. 3. Yes, keep doing. 4. 5 and relax. याद रखिए आपको अपना 100% देना है. Now take 1 foot gap between your feet.
आपके फीट बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। नाउ वी हैव टू रेज आवर हील्स एंड हैंड्स टुगेदर व्हाइल इनहेलिंग एंड अगेन गो बैक। रिपीट इट, इनहेल एंड कम अप, बैलेंस हियर, 2 3, yes, 4, down, last round, 5, down। और इस बार हम होल्ड करेंगे। इंटरलॉक करिए अपनी फिंगर्स को, रिवर्स करिए, बैलेंस रखिए अपनी बॉडी में, किसी भी एक पॉइंट पे आप देखते रहिए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहिए। अब आपकी काफ मसल्स में भी एक स्ट्रेच आ रहा है और आपके शोल्डर में भी स्ट्रेच आ रहा है। जस्ट होल्ड इट। 10 काउंट्स के लिए होल्डिंग है ये, बस होने ही वाले हैं। फ्यू सेकेंड्स मोर एंड स्लोली हील्स एंड हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। अब अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बढ़ा लीजिए, फिर से हमारे पैर स्ट्रेट रहेंगे। नाउ रेज योर राइट आर्म अप एंड बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। चेंज, टेक दिस हैंड डाउन। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड अप एंड बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड। हमें अपने हिप्स को शिफ्ट नहीं करना है। टेक दिस हैंड डाउन, वन मोर टाइम, राइट हैंड अप, बेंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कमिंग बैक, सेम वे, लेफ्ट हैंड अप, बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। वन लास्ट राउंड, राइट हैंड अप, बेंड इट, फील दिस नाउ। जो आपकी साइड में स्क्वीजिंग हो रही है उसको फील करिए। कम बैक, फिर से राइट हैंड को ऊपर लाइए, इसको इस बार थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करिए, साइड में बेंड करिए और होल्ड करते हैं अब इसको। जस्ट फील दिस नाउ। ये जो मिल रहा है आपको ओपनिंग और यहाँ से जो स्क्वीजिंग हो रही है, इसको फील करते रहना हमें। लेग्स हमारे स्ट्रेट हैं, यस, पतली कमर, एंड स्लोली कम बैक। सेम लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर पुल करिए और अब बस अपने हैंड को नीचे की तरफ स्लाइड करते जाइए। आपको ये ओपनिंग फील होने लगेगी अपनी वेस्ट में। ये स्ट्रेच मिल रहा है, आपका हेड ऐसे हैंग नहीं रहेगा, वो आपकी आर्म के पास रहेगा। जस्ट होल्डिंग इट फॉर 10 काउंट्स। यस, फील इट एंड स्लोली टेक योर हैंड बैक। अब फिर से हम अपने पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखते हैं, पैरेलल रहेंगे फिर से हमारे लेग्स। नाउ रेज योर हैंड्स इन फ्रंट एट शोल्डर लेवल। अब हम इस डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। नाउ स्लोली ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। जहां तक भी आपके हाथ आराम से जा रहे हैं, आपको जो ट्विस्टिंग एक्शन मिल रहा है वहां तक लेकर जाइए। फिर से सेंटर में आइए, यही डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए अब लेफ्ट साइड जाइए। कम बैक इन द सेंटर, अगेन गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, एक लास्ट राउंड और, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, एक बार और जाते हैं राइट साइड और इस बार इसको 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। यस, होल्ड इट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक इन द सेंटर और अब लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। अपने हाथों को पैरेलल रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे आर्म्स को। 10 काउंट्स होल्डिंग है ये। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back in the center. Now slowly take your hands down and relax. और अब नेक्स्ट पोज के लिए bring your hands at your chest level. They are parallel like this. Now raise your right knee and tap your hand. Same way, left knee. We have to do total 50 times. So keep doing it. Try to lift your knee as high as you can. 9, 10. Yes. 16, 20. 25, 30, 35,
40, 10 more. 45, 50 and relax. हुई breath fast? Good sign. And now ready for the next pose. इसके लिए आप अपने legs के बीच में थोड़ा सा distance रखिए. Now try to go straight. नीचे जाकर अपने हाथों को इस तरह से टच करिए और वापस आ जाइए. हमें इसके टोटल 10 काउंट्स करने हैं. Yes, go down straight, come up, 2, yes, 3, 4, 5, हम आगे की तरफ नहीं झुकेंगे. 6, जितना सीधा हम नीचे जा सकते हैं. 7, 8, yes, 9, last one, 10 and relax. फिर से फील हुआ ब्रेथ में कुछ चेंजेस? गुड साइन. नाउ इफ यू वांट यू कैन सिप सम वाटर. हमें बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है. हमारी हार्ट बीट फास्ट ही रहनी चाहिए. नाउ कम इन द फ्रंट ऑफ योर मैट. योर टोज आर टुगेदर, heels apart. Now take your hands up and slightly push your hips and abdomen forward. थोड़ा सा आर्च लाइए अपनी बॉडी में. Change. Now slowly go down and now interlock your fingers behind your back. Lift your hands up. जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए और अपने हेड को अपने नीज के पास ले जाने की कोशिश करिए. जितने आराम से आप जहां तक आज जा सकते हैं वहीं जाइए. ये हमारा डे 1 है. बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है हमें. एंड चेंज. नाउ प्लेस योर हैंड्स नेक्स्ट टू योर फीट एंड टेक योर राइट लेग बैक. अब यहां पर फिर से अपनी बॉडी को एडजस्ट करिए थोड़ा बैलेंस करते हुए. हमें वीरभद्रासन 1 में आना है. यदि आप अपने हाथों को इस तरह से ऊपर नहीं जोड़ सकते तो आप इस तरह से भी सपोर्ट ले सकते हैं अपने पैर पर, या फिर आप अपने हाथों को नीचे लगाकर अश्व संचालन में भी रुक सकते हैं. पर कोशिश करिए कि आप वीरभद्रासन 1 में आइए. थोड़ी भी देर आप यदि रुक सकते हैं तो ये काफी रहेगा. यस, यू कैन डू इट. एंड change. Now place your both hands next to your foot and come in high plank. अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए. थोड़ा सा अपनी बेली को अंदर की तरफ सक रखेंगे और 10 काउंट्स के लिए इसको भी होल्ड करते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now just place your knees down. Take 2, 3 normal breath. Now lift your knees up. Come in downward facing dog. Look in between your knees. Keep pushing from your shoulders, pushing your heels in your mat. Change. अब कोशिश करिए अपने राइट फुट को अपने राइट हैंड के बराबर में लाने की. आपको अपने हिप्स को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करना है. चेंज. अब इस लेग को वापस लेकर जाइए. सेम अब आपको लेफ्ट लेग को इस तरह से आगे लाना है. आपको अपने हिप्स में खिंचाव महसूस हो रहा होगा. एंड आवर पर्पस इज दैट. नाउ वन मोर टाइम. राइट लेग इन फ्रंट एंड लेफ्ट लेग इन बैक. फिर से राइट लेग को पीछे और लेफ्ट लेग को आगे. बहुत थोड़ी देर इसको होल्ड कर रहे हैं. एक लास्ट टाइम और. राइट लेग फॉरवर्ड. चेंज. नाउ लेफ्ट लेग फॉरवर्ड. चेंज. नाउ ब्रिंग फर्स्ट योर राइट लेग, देन योर लेफ्ट लेग एंड सिट इन मालासन. अपनी एल्बोज को अपने नीज के बीच में फिक्स करिए. एल्बोज से अपने नीज को
बाहर की तरफ पुश करिए। बैक को आप जितना स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट रखिए। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए सेंटर में आई हूँ, आपका फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा। बस थोड़ी देर होल्ड करना है इसको, और अब अपने अंगूठों को पकड़ते हुए हमें ऊपर आना है और जस्ट हैंग योरसेल्फ। हमें अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करेंगे उत्तानासन में। एंड स्लोली कम अप। और अब हम सेम लेफ्ट लेग से करेंगे। फिर से टोज और हील्स को थोड़ा पास लाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, हिप्स और एब्डोमेन को आगे की तरफ पुश करिए। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। चेंज। नाउ एक्सेल एंड टेक योर हेड डाउन, इंटरलॉक योर फिंगर्स बिहाइंड योर बैक, लिफ्ट योर हैंड्स अप, अब जेंटली स्विंग। बहुत छोटा छोटा सा स्विंग करना है हमें अपने नीज की तरफ। आप देखेंगे कि आपके शोल्डर्स में, आपकी लोअर बैक में, हैमस्ट्रिंग में एक ओपनिंग फील हो रही है। एंड चेंज। नाउ ब्रिंग योर हैंड्स नेक्स्ट टू योर फीट एंड टेक योर लेफ्ट लेग बैक। अब हमें फिर से वीरभद्रासन 1 में आना है, बैलेंस करते हुए। कम इन वीरभद्रासन 1। बस थोड़ी सी देर हमें इसे होल्ड करना है, कोशिश करिए। और डन। नाउ अगेन ब्रिंग योर हैंड्स नेक्स्ट टू योर फुट एंड कम इन हाई प्लैंक। बॉडी में चेंजेस लाने के लिए हमें उसे थोड़ा सा पुश करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। Change. Again, just place your knees down and take 2-3 normal breaths. Change. Now, lift your knees again in downward facing dog. Push from your shoulders. Try to touch your heels in the mat. And change. Again, bring your left leg in front next to your hands, just for few seconds holding it here. Take this leg back. Same with right leg. Change. Then again repeat it. Left leg, then right leg. One last round. Left leg, right leg, and now come in Malasana. Just sit in Malasana. Pushing your knees outside. बैक को स्ट्रेट रखते हैं, हैंड्स को नमस्ते की पोजीशन में। And slowly come up. Again, just hang yourself in Uttanasana. हमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें रिकवर होना है। इस पोज में थोड़ा सा हमारी बॉडी रिलैक्स करेगी। एंड slowly coming up. Now you have to sit on your mat in Baddha Konasana. Join the soles of your feet. जितना आप अपनी हील्स को अपने ग्रॉइन के पास ला सकते हैं उतना लेकर आइए। Now hold your toes and press your knees down. बैक को स्ट्रेट रखा हुआ है हमने। देखिए जितना नीचे लेकर जा सकते हैं हम अपने नीज को लेकर जाइए। And change. Now straighten your legs out in front of you. Interlock your fingers behind your neck. Now we have to touch opposite knee to opposite elbow like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 20 करने हैं हमें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यस थोड़े से और बचे हैं। 15, 16, 17, 18,
19, 20. And relax. Just take your hands back. Relax. Take 2, 3 normal breaths. Change. Now ready for Marichasana. For this, bending your left knee. Your left foot is next to your right knee. Now hug your knee. Just push it inside. This hand is behind your hips. Now just hold it. Keep twisting. Look back. Change. Same way, we will bend the right leg and just hug it with opposite hand and then twist. जितना हम पीछे अपने शोल्डर को पुश कर सकते हैं पुश करेंगे. नी को अंदर की तरफ प्रेस करना है. चेंज. कम बैक इन द सेंटर. अब फिर से हम अपने नी को बेंड करेंगे, पर इस बार हम अपने फुट को आउटसाइड अपने नी के रखेंगे. सेम है, अपोजिट हैंड से इसे फिर से हग करना है. लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है और ट्विस्ट करना है. आपको एक चेंज फील होगा. थोड़ी ज़्यादा आपको ट्विस्टिंग फील होगी अपने स्टमक में. यस, कीप प्रेसिंग योर नी इनसाइड. ट्विस्ट करते रहिए. एंड कम बैक इन द सेंटर. सेम वे, बेंड योर राइट नी. Place it outside your left knee. Hug it with your opposite hand. Place the right hand behind and twist. Yes. Press your knee in opposite direction. And relax. Come back in the center. Now lie down on your back. After lying down on your back, now straighten your legs one by one. Join your heels and toes. Now raise your arms overhead. Stretch your hands above your head and press your feet down. Feel करिए आपकी बॉडी में जो ये स्ट्रेच आ रहा है. It is a very good pose to correct our posture. And relax. स्लोली टेक योर हैंड्स डाउन. अब यदि आपकी बैक में थोड़ा पेन है तो आप हल्का सा अपने हैंड्स को अपने बटक्स के नीचे रखकर सपोर्ट देंगे अपनी बैक को. अदरवाइज यू कैन कीप योर हैंड्स इन टी पोजीशन. नाउ रेज योर राइट लेग एट 90 डिग्री एंड टेक इट बैक. सेम वे, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप एंड डाउन. नी को आप जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखिए. 10 टाइम्स हमें करना है. 4, 5, हील्स को बाहर की तरफ पुश करके रखिए. 6, 7, 8, 9, 10. और एक बार फिर से राइट लेग को 90 डिग्री पर लेकर आइए. हील को बाहर की तरफ पुश करिए, टोज को अपने अंदर की तरफ, और इसको अब हम यहाँ पर 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे. 1, 2, फील करिए आपके स्टमक पर जो प्रेशर आ रहा है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली टेक दिस लेग डाउन. अब सेम लेफ्ट लेग को ऊपर लाइए. पहले हील को बाहर की तरफ पुश करिए, टोज को अंदर की तरफ, और 10 काउंट्स के लिए इसको होल्ड करिए. 1, 2, 3. हो सकता है आज आप 10 काउंट्स नहीं होल्ड कर पाए तो लेग को नीचे ले जाकर वापस ऊपर जरूर लाइए. 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली टेक द लेग डाउन. जस्ट टेक 2-3 normal breaths. Relax your hands. Now bend your right knee. Just interlock your fingers and press this knee in your chest. अब धीरे से अपने हेड को ऊपर उठाइए. यदि आप अपनी चिन को टच कर सकते हैं, नी से टच करिए. नाउ रेज योर लेफ्ट लेग ऑल्सो एट 30 डिग्री.
जस्ट स्विच द लेग्स। आपकी नेक सेम पोजीशन में है। अब इस बार लेफ्ट नी से टच करने की कोशिश करिए अपनी नेक चिन को एंड देन स्विच द लेग्स। टोटल 10 टाइम हमें ये करना है। 4 5 6 7 स्क्वीज करिए अपने आप को। 8 9 10 and slowly take your legs down, keep your knees bent and just relax. Take some normal breaths. अब अपने लेग्स की पोजीशन यही रखिए। आपके नीज के बीच में थोड़ा गैप है। नाउ अगेन टेक योर हैंड्स अबव योर हेड। अब स्लोली अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं एंड देन टेक देम डाउन। एक बार फिर से लिफ्ट योर हिप्स अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इस बार हम होल्ड करेंगे। लिफ्ट देम अप एंड देन होल्ड इट। थोड़ा सा हिप्स को स्क्वीज करिए, फील करिए इसको। 10 काउंट्स के लिए होल्डिंग है हमारी ये। 4 5 6 7 8 9 10 and slowly take your hips down. Relax. फिर से अपने हाथों को टी पोजीशन में लेकर आइए। अपनी हील्स, टोस को और नीज को मिला लीजिए और जस्ट ड्रॉप योर नीज टुवर्ड्स द राइट साइड और टर्न योर फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। फील करिए इस ट्विस्ट को अपनी बैक में। रिलैक्स होने दीजिए अपनी बैक को। चेंज, कम बैक इन द सेंटर, सेम वे। नाउ ड्रॉप योर नीज इन लेफ्ट साइड एंड टर्निंग योर फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। Change, come back in the center. Now hug your both knees. Gently press them in your chest और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड में हम रोल करेंगे अपनी बैक को हल्का सा मसाज देने के लिए। And relax. Now just straighten your legs. We are doing nothing, just lying down only for few seconds in Shavasana. आपका पूरा ध्यान आपकी नेवल पर रहेगा। आइज को क्लोज कर लीजिए। अपनी बॉडी को आप जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ दीजिए। और यदि आपका मन करे तो आप इस पोज में थोड़ा ज़्यादा देर भी रुक सकते हैं। Now slowly moving your fingers and toes, turn to your right side. Use your right hand as a pillow and stay there. With the support of your hands, slowly come up and open your eyes. तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वेट एक दिन में नहीं बढ़ा है, इसलिए ये एक दिन में जाने वाला भी नहीं है। बस हमें कंसिस्टेंटली इस जर्नी को फॉलो करते रहना है। हमें डे 1 में 4 टास्क कंटिन्यू करते रहने हैं। हमारा पहला टास्क था इस वर्कआउट को फॉलो करना, जो कि हमने कर लिया है। और हमारा सेकंड टास्क है हमें अपने हर मील में प्रोटीन को ऐड करना है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और हमारा थर्ड टास्क है हमें एक बैलेंस्ड मील खाना है, मतलब हमारी प्लेट का आधा हिस्सा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मतलब सैलेड्स का होना चाहिए या फिर
कुक्ड वेजिटेबल्स का होना चाहिए, बचा हुआ 1/4 हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए जिसमें कि हमारी दालें आती हैं, एग्स आते हैं, पनीर आते हैं, और बचा हुआ 1/4 हिस्सा हमारा कार्ब्स का होना चाहिए जिसमें हमारी रोटी, चावल, मिलेट्स और दलिया आता है। और हमारा टास्क 4 है कि हमें हर मील के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट एक स्लो वॉक करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें अपने शुगरी ड्रिंक्स को भी थोड़ा कंट्रोल लेना है। यदि आज से आप ये चारों टास्क को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। जब तक आपके पास डे 2 की वीडियो नहीं आती, आप इसी वीडियो को फॉलो करते रहिए। And if you like this video, then please like it and share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.